students, once again in another part of organic chemistry, some basic principles and techniques. Our today's topic is classification of organic compounds. So we have already seen that organic compounds are the hydrocarbons and their derivatives. और हमने ये भी देखा that carbon जो है it forms very large number of organic compounds, near more than 9 million organic compounds. So there is definitely need for classification of organic compounds so as to study these organic compounds in a very systematic manner. So let's see how we classify these organic compounds. Organic compounds have been broadly classified into two categories. One type is known as open chain or इनको हम कहते हैं acyclic compounds, right? Another type that's called closed chain और इनको हम कहते हैं cyclic compounds. Simply आप याद रखेंगे that organic compounds have been broadly classified into two categories. One is open chain or acyclic compounds, another is closed chain or cyclic compounds. Now let's study them in detail and their further classification, that is their further types. So first हम देखेंगे open chain या जिनको हम कहते हैं acyclic. A means without. That means there is no ring, there is no cycle. Simply we are having open chain. So open chain compounds are simply those compounds which contain, in which the carbon skeleton is open. There is no ring closure, there is no cyclic structure. Simply जो कार्बन बैकबोन होगा, जस्ट लाइक दिस, अगर ये कार्बन एटम्स है तो ये जस्ट ओपन होंगे. अब इसके ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स जो है, हमें तो इतना तो समझ में आ गया दैट देयर इज नो रिंग, देयर इज नो साइकिल. एसाइक्लिक है ना, कोई भी रिंग नहीं है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार्बन एटम्स है, ऐसे ये ज्वाइन हुई है, तो यहाँ पे इन कंपाउंड्स में आप देख सकते हैं देयर इज नो रिंग. तो ये ओपन चेन, चेन इज ओपन, there is no closure of chain, there is no any cycle. तो in open chain और acyclic compounds को हम, they are also known as aliphatic compounds. Aliphatic compounds भी इनको कहा जाता है. Why? Because some of these are obtained from animal fat. इनको animal fat से भी हम ऑब्टेन करते हैं कुछ कंपाउंड्स को. कुछ ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम एनिमल फैट से भी ऑब्टेन करते हैं, तभी इनको कहते हैं अलीफैटिक. अली मीन्स एनिमल, फैटॉस है ना, ग्रीक से निकला है. फैटॉस मीन्स फैट्स, सो दे आर obtained from animal fats, hence they are also known as aliphatic compounds. So open chain or acyclic or aliphatic compounds. Now these aliphatic compounds, these open chain compounds, they have been further classified into two types. One is straight chain compounds. Straight chain compounds, ये जो straight chain compounds है, definitely इनमें जो carbon skeleton होगा that will be straight. So here in straight chain compounds, carbon skeleton is straight. यहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर होगी इनकी, जस्ट लाइक दिस. हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ईथेन है तो स्ट्रेट है. या ओके, लेट्स टेक दिस वन, CH3 CH2 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 and CH3. This is our pentane. So it is open chain, chain is open, it's not closed. And number next is carbon skeleton is straight, इनको हम कहते हैं straight chain organic compounds. Next you will remember another type of open chain, that's called branched chain compounds. So in branched chain, नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ये जो कंपाउंड्स है
इनमें जो कार्बन स्केलेटन होगा that will be branched. So here carbon skeleton is branched. It is not straight, it's not linear. यहाँ पे ब्रांच निकली हुई होगी. So just like this, अगर हमारे पास this one CH3 CH3 and CH3, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं that in this compound we are having this straight chain and there is one branch, right? तो इसको हम कहते हैं branched chain compound. इसको हम आइसोप्रोपेन भी कहते हैं, आइसोब्यूटेन भी कहते हैं. जस्ट देयर इज वन ब्रांच है ना, 4 कार्बन इसके अंदर 1 2 3 and 4, so it is butane, isobutane, one branch. Yeah, similarly we can have just like this. अगर ये हमारे पास CH3 है, C, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, राइट, और यहाँ पे भी. सो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है इट्स ऑल्सो ब्रांचेड चेन कंपाउंड. दिस इज स्ट्रेट चेन, यहाँ से एक ब्रांच निकली है और यहाँ से भी वन अनदर ब्रांच. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रांचेड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड. इसमें 5 कार्बन है, पेंटेन है, पर 2 ब्रांच है. इसको हम न्यू पेंटेन कहते हैं, जिसमें ये जो सेंट्रल एटम है इट्स अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स. सो आई होप कि आपने यहाँ पे ये समझा होगा कि दैट वी आर हैविंग ओपन चेन, it can be straight chain compound, it can be branched chain. इनको हम aliphatic भी कहते हैं. Now let's see another type, that is the closed chain organic compounds, या जिनको हम कहते हैं cyclic compounds. So name indicates that in these organic compounds definitely there will be carbon skeleton जो होगा that will not be open, that will be closed chain or cyclic compounds, right? तो यहाँ पे definitely for example if we are having these 3 carbon atoms और यहाँ पे ये ऐसे ज्वाइन हुए हैं, इन्होंने रिंग बनाई है. सो चैन जो यहाँ पे कार्बन की है वो क्लोज्ड है. सिमिलरली वी आर हैविंग दिस 4 कार्बन एटम्स, ये भी ऐसे अरेंज हुए हैं, यहाँ पे इन्होंने 4 मेंबर्ड रिंग बनाया हुआ है. सो दिस इज ऑल्सो साइक्लिक कंपाउंड. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दैट इन दीज साइक्लिक और क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स द कार्बन स्केलेटन इज क्लोज्ड. कार्बन स्केलेटन इज नॉट ओपन, इट इज क्लोज्ड, तभी इनको हम साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं. Similarly, if we are having 5 carbon atoms just like this, they can also be just like this, closed chain. Here chain is not open, it is closed. इनको हम कहेंगे closed chain or cyclic compounds. Closed chain or cyclic compounds. Now, these cyclic compounds, they are further classified into 2 types. One type is known as cyclic compound, can be homocyclic. Another type is heterocyclic. So ये जो homocyclic compounds है इनको हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं. कार्बोसाइक्लिक. So what are these? In homocyclic और कार्बोसाइक्लिक, यहाँ पे भी रिंग जो होगी, यहाँ पे भी कार्बन स्केलेटन जो होगा दैट विल बी क्लोज्ड, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक कंपाउंड. ये भी है. होमो मीन्स सैम, कार्बोसाइक्लिक दैट मीन्स एक्चुअली यहाँ पे ये जो रिंग होगी, साइकिल होगा, क्लोज्ड चैन होगी, उसके अंदर सिर्फ कार्बन एटम्स होंगे, तभी इसको हम कहते हैं कार्बोसाइक्लिक. सो हियर ओनली carbon atoms are present in ring. रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन के ही एटम्स होते हैं, तभी इसको हम कहते हैं कार्बोसाइक्लिक. बिकॉज ओनली कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द रिंग. जैसे हमारे पास दिस वन कंपाउंड है, वी आर हैविंग CH2, अगेन हियर CH2 and CH2 है. तो ये जो है दिस इज आवर साइक्लोप्रोपेन, या बॉन्ड लाइन नोटेशन में है
अगर मैं ऐसे बना रहा हूँ, दिस इज साइक्लोब्यूटेन, है ना, साइक्लोप्रोपेन जो है इसको ऐसे दिखाएंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन में, जस्ट लाइक ए ट्रायंगल। ये हमने सीखा है बॉन्ड लाइन नोटेशन, यू कैन सी इन द एबोव। सो यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स रिंग के अंदर है, ओनली कार्बन एटम्स है रिंग के अंदर, तो भी इसको हम कहते हैं कार्बोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक, राइट। सिमिलरली वी कैन हैव साइक्लोपेंटेन है हमारे पास, साइक्लोहेक्सेन है, बहुत सारे एग्जांपल्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी कार्बन के ही एटम्स प्रेजेंट है रिंग के अंदर, सो दीज आर होमोसाइक्लिक, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि किसी वक्त ऐसे भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास लेट्स से ये 6 मेंबर रिंग है, इस रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन के ही एटम्स है, और अगर यहाँ पे NH2 अटैच्ड होगा तो ये भी होमोसाइक्लिक है, इट इज नॉट हेटेरोसाइक्लिक। यहाँ पे नाइट्रोजन हेटेरो एटम है पर ये रिंग से बाहर है। ओके, लेट्स कंपेयर हियर। सो व्हाट आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स? These are simply those compounds which contain heteroatom in the ring. So heterocyclic compounds are those cyclic compounds which contain one or more heteroatom, which contain one or more heteroatom in the ring. ठीक है, जिनमें एक या एक से ज्यादा हेटेरो एटम होगा रिंग के अंदर, ठीक है। दे आर सिंपली नोन एज हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे अगर हमारे पास जस्ट लाइक दिस वी आर हैविंग ऑक्सीजन एटम हियर, यहाँ पे हमारे पास ये 2 जो है कार्बन एटम, यहाँ पे कार्बन कार्बन पर यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम, हेटेरो एटम। नाउ व्हाट इज हेटेरो एटम? आप ये याद रखेंगे, एनी एटम इज hetero atom which is other than carbon and hydrogen. Simply आप याद रखेंगे hetero atom is atom other than carbon and hydrogen. It's very important to be noted that any atom in organic chemistry, hetero atom is any atom other than carbon and hydrogen. कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी बाकी एटम होगा उनको हम hetero atom कहते हैं। जैसे क्या क्या हो सकता है, नाइट्रोजन इज एन हेटेरो एटम, ऑक्सीजन इज ए हेटेरो एटम, हैलोजन्स ये भी हेटेरो एटम है, फास्फोरस है, सल्फर है, ऑल दीज आर हेटेरो एटम्स। सो क्लियर? तो यहाँ पे दिस इज एग्जांपल ऑफ हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे यहाँ पे भी है, या जैसे हमारे पास जस्ट लाइक दिस है, यहाँ पे सल्फर है, this is also an example of heteroatom. Ring के अंदर one of the atom is heteroatom other than carbon and hydrogen, so that compound will be known as heterocyclic. Now ये जो homocyclic organic compounds है जिनको हम carbocyclic भी कहते हैं, they are further classified into alicyclic and aromatic compounds. So let's see. ये जो हमारे पास होमोसाइक्लिक है, दे हैव फर्दर बीन क्लासिफाइड इनटू अलीसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, और वैसे ही हेटेरोसाइक्लिक जो है उनको भी हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, दैट इज अलीसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। ओके, लेट्स सी इन डिटेल। तो हमारे पास वी वर हैविंग होमोसाइक्लिक, राइट। होमोसाइक्लिक जो है इनके फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं अलीसाइक्लिक, सो होमोसाइक्लिक दैट मीन्स यहाँ पे भी इन अलीसाइक्लिक क्या होना चाहिए, ओनली कार्बन एटम्स आर इन द रिंग। एक पॉइंट इसमें आप याद रखेंगे, ओनली कार्बन एटम्स आर इन द रिंग। रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन के ही एटम्स होने चाहिए, कोई हेटेरो एटम नहीं होना चाहिए, तभी तो ये होमोसाइक्लिक है। दूसरी बात ये है, इनको अलीसाइक्लिक क्यों कहते हैं? अली मीन्स अलीफैटिक। एक्चुअली आप याद रखेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है दे रिजेंबल विद अलीफैटिक कंपाउंड्स। सो इन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबल विद
aliphatic compounds, aliphatic compounds, ठीक है, जो ऑलरेडी हमने देखे अलिफैटिक ओपन चैन में है, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनके साथ इनकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज मैच होते हैं। तो जस्ट लाइक एग्जांपल जो है इसमें by having cyclopropane, by having cyclobutane, by having cyclopentane, right, by having cyclohexane, ये सभी होमोसाइक्लिक है, सिर्फ कार्बन एटम्स ही इनके अंदर है, और ये एलिसाइक्लिक कहलाते हैं क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है that resemble with the aliphatic compounds. Now another type of homocyclic compound, that is the aromatic compounds, ठीक है, ये भी इसी का टाइप है। इसी के दो टाइप्स अभी हम पढ़ रहे हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के, जिनको हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। कार्बोसाइक्लिक दैट मीन्स कार्बन एटम्स ही होने चाहिए रिंग के अंदर। लेट्स सी एरोमेटिक कंपाउंड, एक्चुअली ग्रीक वर्ड से निकला एरोमा। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है इनका एरोमा होता है, एरोमा मीन्स स्वीट फ्रेग्रेंस, स्वीट फ्रेग्रेंस, इनका प्लीजेंट ऑर्डर होता है, प्लीजेंट ऑर्डर, एक अच्छा स्मेल इनका हुआ करता है। बट दिस हैज लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस। ये जो हम कहते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनका प्लीजेंट स्मेल होता है, जिनका स्वीट फ्रेग्रेंस होता है। कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे भी है विच डू नॉट हैव स्वीट और प्लीजेंट फ्रेग्रेंस, ठीक है, पर वो फिर भी एरोमेटिक होते हैं। तो ये कैसे फिर हम बताएंगे विच इज एरोमेटिक विच इज नॉट? हकल्स रूल, हकल ने इसके लिए रूल दे दिया, हकल्स रूल जिसको हम पढ़ते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो ऑलरेडी टॉपिक मैंने डिस्कस किया हुआ है, लिंक आपको वो मिलेगा, आप वो वॉच कर सकते हैं। दैट एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। इनमें एक्चुअली डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, और एरोमेटिक कंपाउंड्स में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड देयर इज कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये आप यहां पे याद रखेंगे। सो एरोमा, एरोमेटिक कंपाउंड्स, और इनमें भी क्या होना चाहिए, देखो ये भी होमोसाइक्लिक का ही टाइप है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी कार्बन एटम्स शुड बी इन द रिंग। जैसे ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं इनमें मोस्टली बेंजीन रिंग होता है, या एक से ज्यादा बेंजीन रिंग्स, ठीक है, मोस्टली। But there are also aromatic compounds which do not contain benzene ring but are still aromatic. तो इनमें एक्चुअली 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, वो आप डिटेल में नेक्स्ट उस वीडियो में देख सकते हैं। सो लेट्स गिव द एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे हमारे पास बेंजीन है, ये एरोमेटिक है, और इसके अंदर कार्बन के ही एटम्स है, 6 कार्बन एटम्स आर देयर, C6H6 है, बेंजीन। नाउ दीज एरोमेटिक कंपाउंड जो है इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया इनटू बेंजोनाइड्स एंड नॉन बेंजोनाइड्स। इस वक्त बेंजीन होगा, बेंजीन भी एरोमेटिक है, या अगर मैं यहाँ पे लूंगा जस्ट लाइक दिस कंपाउंड, दिस इज फ्यूरैन, फ्यूरैन जो है यहाँ पे ये भी एरोमेटिक है, बट फ्यूरैन में कोई बेंजीन रिंग है ही नहीं। So that's why aromatic compounds have been further classified. यहाँ पे आप देख सकते हैं, they have been further classified into 2 types. One is benzenoids. Benzenoids, that means those aromatic compounds which contain benzene ring in them. Simply, जिनमें benzene ring होगी। जैसे इसमें firstly benzene आता है, benzene खुद ही आ जाएगा, benzenoid, just like this. पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम सर्कल से भी दिखाते हैं, बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इन कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, दे आर नॉट इन रेस्ट, ये मोशन में होते हैं, ये डिलोकलाइज होते हैं अपॉन ऑल दीज 6 कार्बन एटम्स। या सिंपली अगर हमारे पास 2 बेंजीन रिंग्स कंबाइंड है, जस्ट लाइक दिस, दिस इज 1 बेंजीन रिंग, और इसी के साथ अनदर बेंजीन रिंग है, इसको हम कहते हैं नेप्थलीन,
right? This is benzene, this is naphthalene. So these are known as benzonides. बेंजीन है, नेप्थलीन है, नेप्थलीन बॉल्स हम यूज करते हैं. नेप्थलीन बॉल्स जो है दे आल्सो अंडरगो सब्लिमेशन, डायरेक्टली सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं हीटिंग पे. लेट्स हैव अनदर. अगर हमारे पास 3 बेंजीन रिंग्स अटैच्ड है, सो बेंजीन हमने देख लिया. जब 2 बेंजीन रिंग्स तो नेप्थलीन उसको कहा. जब 3 बेंजीन रिंग्स होते हैं इसको हम कहते हैं एंथ्रासीन, राइट? सो एंथ्रासीन जो है दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बेंजोनाइड. या सिमिलरली वी कैन ऑल्सो हैव जस्ट लाइक दिस. अगर 3 बेंजीन रिंग्स ऐसे जुड़े हुए होंगे, दिस इज 1, this is another benzene ring and this is the third benzene ring. इसको हम कहते हैं phenanthrene. Phenanthrene. So this is also an example of benzonide, aromatic compounds which contain benzene ring in them. But we are also having non-benzonides. So that means benzonides जो है monocyclic भी हो सकते हैं, एक ही benzene ring. Bicyclic, right? They can also be tricyclic, है ना, tetracyclic, etc. So let's see non-benzonides. ये जो non-benzonides होते हैं तो डेफिनेटली इनके अंदर बेंजीन तो नहीं होगा. Non-benzonide, they do not contain benzene ring in them, but they are still aromatic. ये इसी का टाइप है aromatic compound. So just इसमें आप एग्जाम्पल याद रखेंगे. अभी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था, दिस वन, दिस इज कॉल्ड फ्यूरैन. ये एरोमेटिक है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये हकल्स रूल फॉलो करता है. इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है. सो दिस इज अवर फ्यूरैन. फ्यूरैन जो है इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड. जस्ट वी आर हैविंग नेक्स्ट. यहाँ पे अगर ऑक्सीजन के बदले सल्फर होगा, इसको हम कहते हैं थायोफीन. दिस इज अवर थायोफीन. थायोफीन इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड बट दिस इज नॉन बेंजोनाइड. या सिमिलरली अगर यहाँ पे सल्फर के बदले नाइट्रोजन होगा, तो जस्ट लाइक दिस नाइट्रोजन, यहाँ इसके साथ ये हाइड्रोजन भी है, एक लोन पेयर. सो दिस इज नोन एज पायरॉल. पायरॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ non-benzonide aromatic compound. और just we are also having, अगर हमारे पास बेंजीन होगा, बेंजीन में एक कार्बन जो है उसको हमने रिप्लेस किया नाइट्रोजन से, ठीक है. सो ये जो कंपाउंड हमें मिला इसको हम कहते हैं पायरिडीन. सो पायरिडीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है. इसको हम कहते हैं पायरिडीन. जस्ट लाइक बेंजीन ही है, बस एक कार्बन बेंजीन में एक कार्बन के बदले नाइट्रोजन एटम है, बाकी वही 3 पाई बॉन्ड्स है जैसे बेंजीन के अंदर होता है. सो दिस इज कॉल्ड पायरिडीन. पायरिडीन इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन बेंजोनाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड. बट एक्चुअली ये जो नॉन बेंजोनाइड्स है ये आ जाएंगे हेटेरोसाइक्लिक में. अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं, हाँ ये आप यहाँ पे लिखेंगे, ये सभी जो है दीज आर हेटेरोसाइक्लिक. ये सभी कैसे हैं, हेटेरोसाइक्लिक. आई होप कि आपको याद होगा, अभी मैंने बताया था हेटेरोसाइक्लिक में क्या होता है. वी आर हैविंग 1 or more hetero atom inside the ring. 1 or more hetero atom. Oxygen is hetero atom, sulfur is hetero atom, nitrogen is hetero atom, right? पर अगर हमें एग्जाम्पल देनी होगी किसकी, if we will give the example of नॉन बेंजोनाइड विच इज होमोसाइक्लिक, ठीक है, तब कौन से एग्जाम्पल आप दे देंगे. जस्ट वी आर हैविंग एग्जाम्पल हियर, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ. ओके चलो यहाँ पे ऊपर लिख लेता है. ये जो नॉन बेंजोनाइड्स है जिनके अंदर बेंजीन नहीं होगा और ये होमोसाइक्लिक भी होने चाहिए और ये एरोमेटिक भी होने चाहिए. वी आर हैविंग example like tropone, or we are having example like troponone, ठीक है. ओके लेट्स सी, होमोसाइक्लिक होना चाहिए और क्या होना चाहिए,
नॉन बेंजोनाइड, नॉन बेंजोनाइड। इसमें आप एग्जांपल देंगे जस्ट लाइक दिस। अगर ये हमारे पास है डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, राइट। तो यहाँ पे इसके अंदर, हाँ, इसको कहा जाता है ट्रोपोन। ट्रोपोन जो है ये भी एरोमेटिक है, पर इसके अंदर कोई बेंजीन रिंग नहीं है, और ये देयरफॉर नॉन बेंजोनाइड है, और ये होमोसाइक्लिक नॉन बेंजोनाइड है, राइट। होमोसाइक्लिक दैट मीन्स रिंग के अंदर सिर्फ क्या है, कार्बन एटम्स है। ये जो ऑक्सीजन एटम आप देख रहे हैं ये रिंग के बाहर है, ठीक है, ये होमोसाइक्लिक में ही आ जाएगा। सो नेक्स्ट आप इसी को ऐसे भी दिखा सकते हैं, अगर हमारे पास जस्ट लाइक दिस, इसको दिखा देंगे देखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेम मैंने बना दिया, बस यहाँ पे OH, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है ना। तो इसको कहा जाता है ट्रोपोलून। ट्रोपोलून इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ये भी एरोमेटिक है, ये भी हक्कल्स रूल फॉलो करता है, इसमें भी कंप्लीट कंजुगेशन है, बट इट्स आल्सो होमोसाइक्लिक, क्योंकि रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन एटम्स है। रिंग के अंदर, ये रिंग से बाहर है, ये जो दो ऑक्सीजन एटम्स आप देख रहे हैं ये रिंग के बाहर है। तो ये क्या कहलाएंगे, नॉन बेंजोनाइड होमोसाइक्लिक। नाउ लेट्स सी हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ऑलरेडी हमने देख लिया उनकी डेफिनेशन। हेटेरोसाइक्लिक मीन्स ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स जिनके अंदर क्या होगा, वन और मोर हेटेरो एटम। तो इनको भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। दे आर आल्सो क्लासिफाइड इन अ सिमिलर मैनर, दैट मीन्स एक को हम कहेंगे अलीसाइक्लिक। सो अलीसाइक्लिक कौन से होंगे, अलीसाइक्लिक विल बी दोज, देखो पहली बात तो ये हेटेरोसाइक्लिक के होने चाहिए, तो दे शुड, ये क्या होने चाहिए इनके अंदर, वन और मोर हेटेरो एटम, वन और मोर हेटेरो एटम होना चाहिए इन द रिंग, रिंग के अंदर। दूसरी बात ये है, इनकी भी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो रिजेंबल होती है एलिफैटिक कंपाउंड से। तो नेक्स्ट इसमें आप याद रखेंगे, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज resemble with, their chemical properties resemble with aliphatic compounds। aliphatic compounds के साथ इनकी भी प्रॉपर्टी मैच होती है। so let's give the example, जैसे हमारे पास है, we are having just like this, ये हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, चार कार्बन एटम्स है, 1 2 3 एंड 4, फिफ्थ इज ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन इज हेटेरो एटम, तो ये हेटेरोसाइक्लिक है। अब ये एरोमेटिक नहीं है, ये एलिसाइक्लिक है, इसकी प्रॉपर्टी एलिफैटिक कंपाउंड से मैच होती है, इसको हम कहते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, THF। आप याद रख सकते हैं, दिस इज नोन एज टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, ठीक। या वे आर ऑक्सीजन, जस्ट लाइक दिस, ऑक्सीजन है, फिर दो यहाँ पे कार्बन एटम्स हैं, इपॉक्सी इथेन भी इसको कहा जाता है, इपॉक्सी इथेन। ये भी हेटेरोसाइक्लिक है बट एलिसाइक्लिक, रिजेंबल, इट्स प्रॉपर्टीज रिजेंबल विद एलिफैटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स आप याद रख सकते हैं, जस्ट लाइक दिस वी आर हैविंग दिस कंपाउंड, यहाँ पे वन ऑफ द एटम इज ऑक्सीजन, बाकी 5 कार्बन एटम्स है, ये भी हेटेरोसाइक्लिक है और एलिसाइक्लिक होगा। ओके, लेट्स हैव अनदर दैट विल बी एरोमेटिक। एरोमेटिक है बट हेटेरोसाइक्लिक है। तो इसमें वही एग्जांपल आएंगे जो अभी मैंने बताए थे, जैसे मैंने बताया था फ्यूरैन, ठीक है, फ्यूरैन जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, फ्यूरैन, या सो दिस इज आवर फ्यूरैन,
सिमिलरली अगर ऑक्सीजन के बदले यहाँ पे सल्फर होगा तब इसको थायोफीन कहते हैं, तो ये भी एरोमेटिक है, इसको हम थायोफीन कहते हैं, राइट। या सिमिलरली वी कैन आल्सो हैव नाइट्रोजन एटम, अगर जस्ट लाइक दिस, अगर यहाँ पे नाइट्रोजन होगा इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इसको हम कहते हैं पायरॉल। पायरॉल ये सभी एरोमेटिक है बट हेटेरोसाइक्लिक है, जैसे अभी बताया था पायरिडीन है ना, पायरिडीन बेंजीन में एक कार्बन के बदले यहाँ पे नाइट्रोजन है, बाकी तो वही है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड्स है। सो पायरिडीन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड एंड हेटेरोसाइक्लिक, राइट। तो ये हम याद रखेंगे that heterocyclic, they can be also recycling, they can also be aromatic. So this was the classification of organic compounds. So hope that you have understood this. Thank you for watching.